Rayleigh's criteria to resolve the two images. Resolve the two images means if two objects are very close to each other. Suppose two stars are very close to each other. When we see it from the ground, what we find is single one. So this we call it unresolved. But if we use the telescope, then we can see the two stars just distinct, or we can see them separate, as we call it well resolved. अगर ऐसा दिखता है हमें वो just resolved, and ऐसा दिखता तो unresolved. तो telescope से we can resolve them. We can see them as a distinct one and clear also. In night, when we look up to the sky, what we see many stars. They are not the stars, they are full galaxy itself, consisting of many stars in them. So when we use the high power telescope like Hubble, and now latest one is what? James Webb, then we can see it is completely galaxy and different galaxy and having many stars in them. So that deals with the resolving power to see the very close object distinctly or very distant object distinctly. So Rayleigh's criteria for resolving the images was this: if the center maxima of one object, ये वाला, is formed first minima of the second object. Second object का जो diffraction pattern है, उसका first minima उसके ऊपर, और second object का center maxima is just above the first minima of the second object. तो ये condition है, अगर center maxima like this they are separated, then it is just resolved. If they are further away, then this will be the case. If they are further close, then it will be the case. We cannot see them as a distinct one. We will find, okay, we will see that it looks like single object. All right, so this is the criteria for Rayleigh's criteria for resolution. Resolving means to see the images distinctly. Image will be just resolved if center maxima of first object is just above the first minima of second object. Diffraction pattern याद है आपको? Like this. ये second का है. तो ये condition होती है. तो इसके लिए एक फार्मूला है. That फार्मूले से हमें चेक करना पड़ेगा रिजॉल्व होना कितना मिनिमम डिस्टेंस तक कितना रिजॉल्व कर सकते हैं. Let's see that formula now. देखो ये नीचे दिख रहा है. Even suppose you are standing on the road, night में road side पे खड़े, when the car comes, highway पे आप देखेंगे दूर है काफी, you can see it from distance. So first what you find is single headlight. उसके बाद when it comes closer, then you see okay, it has the two headlights. And then when further comes closer, you can see the gap between the two headlights also. You can see yourself, है ना? Now, limit of resolution, कितना minimum angle तक हम देख सकते हैं. That is what is the limit of, in case of telescope, we call it limit of resolution, which is denoted by theta, delta theta, d theta. तो minimum angle, suppose ये दो distant objects है, if they come very close, up to what minimum angle they can be seen as just separate. They're coming close. तो कितने minimum
angle tak they can be seen as a distinct well. It is a minimum angular separation. यहाँ पे observer होगा. Here is the observer. Earth पे समझ लो. Or you are the observer. And these are the two distant objects. It is a minimum angular separation between two distinct objects, which a telescope can see them as a distinct object. तो इस पे किस पे डिपेंड करता है ये? It is 1.22 lambda divided by d in radian. It will be in radian. Angle है, where d is the aperture of objective lens. अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो d will be diameter of human eye, only few millimeter. So angle will be not that small when we use the telescope. In that case, diameter is in meters. The telescope can resolve it to the very close objects. Getting this? तो ये फॉर्मूला है. इसमें देखो एक क्वेश्चन भी है ये. Light, lambda is the wavelength of light coming from the distant object. Wavelength is this much coming from a star. What is the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter 100 inch? 101 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. यहाँ पे सिंबल डी यूज करेंगे. एनसीईआरटी बुक में डी को उन्होंने 2a लिया हुआ है. तो 100 इंच को मीटर में कन्वर्ट कर लो. 2. We can solve it है ना. यहाँ पे उन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया. 1.22 था, 2 से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया. तो दिस इज द आंसर कमिंग. Alright. So this is the limit of resolution. You can just leave the numerical. We'll solve it separately. ये देख लो. 1.22 lambda upon d. ठीक है. D is the diameter, which is written as the 2a in our textbook. A is the radius of objective lens. उसको डबल करके 2a लिखा है, हम लोगों ने d लिखा है. Alright. Now resolving power of telescope क्या होता है? ये रेसिप्रोकल है. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो हमने अभी थीटा पीछे पढ़ा है, डेल्टा थीटा, उसका रेसिप्रोकल. उसको रेसिप्रोकल करेंगे, d ऊपर आ जाएगा, 1.22 लैम्डा नीचे आ जाएगा. इसका यूनिट पर रेडियन हो जाएगा. जैसे पावर एंड फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर resolving power and limit of resolutions are reciprocal to each other. Bigger the diameter, bigger will be the resolving power. सबसे बड़ी जो telescope was made in 1920, it was having the 100-inch diameter. इसका कितना दिया था? 100 inch. Same was made 100-inch diameter की जो it was biggest in 1920. It was for 50 years. It was biggest, and it was made by Hubble. He used to observe the galaxies through that. Later on his name, Hubble telescope was launched in the orbit. Still it is running. Very high resolving images are sending on the Earth.
telescope having above the atmosphere will give them more resolving power. Because of atmosphere, resolving power goes down, clarity goes down. Now they have launched the telescope. James Webb, he was another astrologer. On his name, it is far away from the Earth. Hubble telescope is just 500, 600, I think, within 1,000 kilometers above the Earth. But this is many thousand kilometers away, lakhs of kilometers away, James Webb telescope. In between the sun and earth, where the gravity is, where is the neutral point, somewhere there, far away. It can see, James Webb telescope can see up to, it can reach up to the end of the universe. Its observation point is just very close to the end of universe when it was formed. Now it is expanding. When it was formed, 13.8 billion years, it can look up to that. Hubble was not able to look up to that. Moving further, for microscope minimum distance के term में, here is the objective. Two objects are very close to each other. यहाँ पर है near to focal point of the objective lens. तो उनका जो minimum separation है d minimum, उससे limit of resolution is defined. It is the minimum separation d minimum between 2 points which can be seen as the distinct by the microscope, which is given by d minimum depends upon, of course, wavelength. और ये सेम टर्म है ऊपर जो कि टेलीस्कोप में था, बट नीचे डायमीटर की जगह इट इज 2 sin थीटा. थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल लेंस का सेमी वर्टेक्स एंगल हाफ एंगल. So this is of course related to diameter only. Bigger the diameter, bigger will be the angle. But of course, in previous case, it was diameter, it is angle. That is the difference. But both are related to each other. Where beta is the angle subtended by radius of the objective at the focus. At its focal point. At its focal point. Because the objects are very close to that. All right. Got it? तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा. इसको उल्टा कर दो तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप reciprocal of minimum separation between the 2 points, which can be seen as a distinct limit of resolution. है ना, इसको reciprocal of limit of resolution बोल सकते हैं. That is limit of resolution. यहाँ पे एक मिनट कहाँ पे था? Here it is. नहीं, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो गया. हमें रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करनी है ना. नहीं, उससे पहले ये भी है. If medium between the object and the objective lens is not air but medium of refractive index n, यहाँ पे हमने एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाल दिया
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो नीचे n आ जाएगा, विच इज मोर देन 1, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विल फर्दर कम डाउन। और क्लोज ऑब्जेक्ट देख सकते हैं हम, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके फाइन डिटेल्स देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरली मीडियम को हम चेंज करके रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, इन अदर वर्ड्स रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर होगा। और उसमें एक टर्म और है न्यूमेरिकल अपर्चर, द टर्म n sin बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर इसका डायमीटर बढ़ेगा, अपर्चर बढ़ेगा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर भी बढ़ेगा, बीटा विल फर्दर इंक्रीज। so it is related to diameter only, but it is not the diameter related, directly proportional. n sin theta is called numerical aperture of microscope, and resolving power is reciprocal हो जाएगा। resolving power is the reciprocal of minimum separation between 2 points of which can be seen, that is limit of resolution, that is resolution limit। उसका रेसिप्रोकल है। तो 1/d मिनिमम ये टर्न हो जाएगा, देखो यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। इसका यूनिट देखो पर मीटर है। पीछे क्या था, टेलीस्कोप में क्या था, पर रेडियन, दिस इज पर मीटर। तो both the resolving power has got different units, माइक्रोस्कोप का पर मीटर, टेलीस्कोप का पर रेडियन। गॉट इट। डिनोमिनेटर की टर्म सेम है रिजॉल्विंग पावर में, की डिफरेंट है। माइक्रोस्कोप में 2n sin थीटा 2n sin बीटा है, वहां पर d है। n कैन बी 1, अगर यहाँ पर एयर या वैक्यूम है तो n1 कर देंगे। अगर दिया है दूसरा मीडियम हमने फिल किया बीच में, तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर यू देयर? आर यू अवेलेबल? Yes, sir. तो ये रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जनरली रेशो में पूछेंगे, लैम्डा की दे देंगे, λ1 λ2, तो रेशो में पूछेंगे। अदर फैक्ट, टू डिफरेंट वेवलेंथ में रिजॉल्विंग, तो सबसे ज्यादा किस में होगी रिजॉल्विंग पावर, कौन से कलर के लिए होगी? वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी मोर। एंड यहाँ पे हम कलर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पास में ऑब्जेक्ट है तो लाइट हम डिफरेंट कलर की, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका लेंथ छोटा होता है। वेयर एज, और लाइट हम बढ़ा भी सकते हैं, वेयर एज टेलीस्कोप का फ्रंट लेंस इज बिगर बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द लाइट ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर सो दैट मोर लाइट शुड इंटर। लाइट होगी तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। टेलीस्कोप में वो इशू नहीं है, तो छोटा लेंस रख सकते हैं, डायमीटर कम रख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लैम्डा इज फर्दर डाउन, बहुत कम हो जाती है, तो रिजॉल्विंग पावर गोज अप, वेरी वेरी हाई वैल्यू ऑफ रिजॉल्विंग पावर will be there for electron microscope, which is not in our course. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज होती है, h/mv वेलोसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल डिफरेंस से, तो लैम्डा कम होगा। लैम्डा कम हुआ तो रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई कर सकते हैं।
तो ये ऑयल वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया यहाँ पे। रिजॉल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज बाय चूजिंग द मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, usually oil having the refractive index close to the objective glass, that is objective lens. Such an arrangement is called oil immersion objective. ऑयल यूज करते हैं यहाँ पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मे बी ग्रेटर देन वाटर, तो इट विल इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, नाउ ये तो भैया अपनी टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट्स हैं। देखो, टेलीस्कोप रिजॉल्व्स वेयर एज माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर टू आवर आई। टेलीस्कोप क्या करेगा, दूर के ऑब्जेक्ट को इमेज अपने पास बनाएगा, आंख के पास बना देगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट रिजॉल्व एट द फार डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर पे है, वो रिजॉल्व नहीं है, कैन बी रिजॉल्व बाय लुकिंग एट देम थ्रू द टेलीस्कोप। पास में जब इमेज बन गई है ना, मून की इमेज पास में बन गई है ना, से 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई इन केस ऑफ इमेज एट डी, है ना, उस समय हमने बना लिया पास में। इन दैट केस इट्स रिजॉल्विंग, it can be well resolved, है ना। whereas microscope on the other hand magnifies objects which are near to us, produces a larger image। तो ये मैग्नीफाई करता है और टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। दोनों पास में इमेज बना के जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये मैग्नीफाई कर सकता है। बड़ा करने के बाद इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। So that is the word used at the end in our textbook. Telescope resolves, whereas microscope magnifies. तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं, यहाँ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइज, एम एक साथ है। Alright, so these questions you have to remember the formula. डिनोमिनेटर में है, फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, फ्रीक्वेंसी ऊपर आ जाएगी, लैम्डा को चेंज कर सकते हैं। लैम्डा इज डिनोमिनेटर और diameter or numerical aperture is at numerator in both the cases। दोनों केसेस में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स है 1.22 लैम्डा, और न्यूमरेटर में डायमीटर से रिलेटेड टर्म है। एक में तो डायरेक्ट डायमीटर है जिसको अपर्चर बोलते हैं, दूसरे में एंगल से रिलेटेड है वो। गॉट इट। इसके बाद पोलराइजेशन है, ये भी डिलीट किया हुआ है सीबीएसई के दिस ईयर के कोर्स में 22 के, but in case of JEE and NEET, it is the part of the course. Polarization of light is the third phenomena. Already we have seen interference, then we have seen what is called diffraction. Now polarization, इसको हम briefly देख सकते हैं। क्या होता है, लाइट है अपनी, सनलाइट और ऑर्डिनरी लाइट कमिंग फ्रॉम द ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा, एलईडी, ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। सपोज यू आर लुकिंग, लाइट इज अप्रोचिंग यू, तो उसके लाइट के वाइब्रेशंस अपवर्ड भी होंगे,
हॉरिजॉन्टल भी होंगे, इंक्लाइंड भी होंगे. There is a light which approaches you, vibrates in all the planes. So this light is called unpolarized light. But if you pass through this light, if you pass this light through certain crystals called polarizer, they can be artificially made, can be naturally found in the nature. तो अगर हम उनसे पास करते हैं लाइट को, तो जो वाइब्रेशंस है लाइट के are found to be in one single plane. Light vibrating in single plane is called polarized light. यहाँ से देखो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, ऐसे डिफरेंट वाइब्रेशन से. इसको हमने पोलराइज से पास किया. इसको बोलते हैं पास एक्सिस और ट्रांसमिशन एक्सिस. लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें, तो उनके थ्रू ऐसे ट्रांसमिशन एक्सिस हमें दिखेगा नहीं. दे विल हैव ट्रांसमिशन एक्सिस सर्टेन डायरेक्शन, तो वो लाइट पास हो जाएगी. is called polarization of light, but intensity half रह जाती. इसके जो ये वाले वाइब्रेशंस होंगे, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस, एंगल पे जो वाइब्रेशन होंगे, कुछ कंपोनेंट वर्टिकल में आएंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल आएंगे. हॉरिजॉन्टल वाले अब इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. कंपोनेंट्स विल बी लाइट गोइंग लाइक दिस. उसके जो एंगल वाले कंपोनेंट है, सर्टेन विल बी अलोंग द वर्टिकल और सर्टेन विल बी इनटू द प्लेन. यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, डॉट में क्या है, वाइब्रेशन प्लेन के अंदर हो रहे हैं, ये पैरेलल टू द प्लेन. इसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे. तो एंगल वाले कंपोनेंट, एक एंगल वाले जो वाइब्रेशंस हैं, उनके कुछ कंपोनेंट इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी अब्सॉर्ब्ड, विल बी पास. ये सिंबल है अनपोलराइज्ड का. सिंबल ये है. वैसे तो इसके कंपोनेंट कर लिए, वर्टिकल वाले डबल एरो से दिखाते हैं, डॉट वाले क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. ये वाले प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहे हैं, लाइट ऐसे जा रही है. आपको साइड से ये वाले वाइब्रेशन नहीं दिखेंगे, है ना, अगर साफ. ठीक है, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं. इसको हम ऐसे देख सकते हैं, विच इज पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर. और ये अंदर पेपर के अंदर जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, ये भी पोलराइज्ड लाइट है. इसमें वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लाइट. तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो इसमें ये वाले वाइब्रेशन बचे, इंटेंसिटी भी आधी हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बट ये करते क्यों है पोलराइजेशन ऑफ लाइट? व्हाई डू वी डू इट? फायदे क्या है? फायदे देखो क्या है डे टू डे लाइफ में. देखो, पोलराइजर आर यूज्ड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. कैमरे में सन ग्लासेस में एक तो इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं. 50% चाहिए या उससे कम चाहिए. 50% तो वो सिंगल उसमें हो ही जाती, उससे भी कम करा सकते हैं, है ना. और 50% से ज्यादा चाहिए तो फिर कुछ और मेथड यूज कर सकते हैं. बट कंट्रोल द लाइट, नॉट ओनली कंट्रोल द लाइट, ऑल्सो द ग्लेयरिंग इफेक्ट, शाइनिंग इफेक्ट. सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, एरोप्लेन या ट्रक या ट्रेन, और सामने की सरफेस अगर वेट हो गई, है ना, ड्यू टू रेन और ड्यू टू द स्नोफॉल एंड ऑल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई. रोड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द ग्लेयरिंग इफेक्ट कम्स. लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आती है, फिर हमें ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है. एक तो डायरेक्ट आ रही सन से, दूसरी उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही, तो विजिबिलिटी इज हैम्पर्ड. तो इफ वी keep the विंड ग्लास ऑफ कार, विंड ग्लास मतलब सामने वाले, है ना, हवा भी रोकती है और लाइट को भी कंट्रोल करती है वो.
तो ग्राउंड से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी, दैट विल नॉट बी entering into the that driver's cabin. सामने वाली विंड, जो सामने वाली जो ग्लास होती है, पोलराइज मटेरियल की होती है, whether it is car or truck or aeroplane or train, तो ship even, तो it is made from the polarizing material which will absorb the certain vibrations which are not required and produce glaring effect उसका कम करती है. And they are also used in sunglasses, window pens, and photographic cameras, and 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 windscreen of the car. Already I told you, and calculators, TV, and so many places the polarization of light is used. मेन क्या है उसका, एक तो उसको लाइट को कंट्रोल करो, है ना, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, पोलराइज करा के उसके वाइब्रेशन, पहले तो वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक सिंगल प्लेन में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन. Restricting the vibrations of light wave in one single plane is called polarization, plane polarization बोलेंगे उसको. And this light is called plane polarized light. Only transverse waves can be polarized. Therefore, out of X-rays and sound waves, X-rays can be polarized. They are transverse waves. Electromagnetic waves can be polarized because they are the transverse waves. देखेंगे अभी, एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे. पहले हम थोड़ा थियरी समझ लेते, फिर एक्सपेरिमेंट लास्ट में देख लेते. जैसा कि मैंने बताया, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं. In one particular direction, electric field vectors along the direction of aligned molecules get absorbed. जिस तरफ मॉलिक्यूल्स अलाइन है, वो वाले कंपोनेंट ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे. इसके परपेंडिकुलर जो है, यहाँ पे जो गैप होंगे, ऐसे सपोज मॉलिक्यूल ऐसे अलाइन है, ये वाली लाइट क्रॉस हो जाएंगे, जैसे इधर ट्रांसमिशन प्लेन होगा, ये वाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे अगर ऐसे अलाइन है. तो दैट वी डोंट नो टू वरी कैसे क्या रहता है इसमें, बस ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, तो दे विल vectors the direction of aligned molecules get absorbed. Therefore, light gets polarized with the electric field vector oscillating along the direction perpendicular to the aligned molecule. उनके बीच में गैप होता है, जिस तरफ aligned molecules के बीच में जो गैप होगा perpendicular direction में, वहां से लाइट निकलेगी. This direction is path axis of the polaroid or transmission axis. तो ट्रांसमिशन हर पोलराइड में कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन एक्सिस रहेगी, एंड उसी से लाइट निकलेगी, बाकी अब्जॉर्ब हो जाएगी. उसके परपेंडिकुलर वाली सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी. एंगल वाले के कंपोनेंट निकलेंगे, 50% लाइट निकल पाती है. ये windshield of the, that is front glass of the car, is polarized by adding long chain molecules between the two glass sheets. नॉर्मल ग्लास रहते हैं, उसके बीच में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल की एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर लगा देते हैं, लाइट उससे पोलराइज होती है. इट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द रोड टू एंटर द कार. तो इसलिए जब कार का फ्रंट ग्लास टूटता है तो वो सेपरेट नहीं होता, बीच में पोलराइज शीट होती है ना, वो बाइंड करके रखती है. वाइट हो जाता है पूरा, अगर क्रैक हुआ ना उसके टुकड़े नहीं होते, and it becomes white, and then it doesn't fall on the ground in pieces because polarizing shield holds them together. आगे पीछे ग्लास रहता है, बट बीच में पोलराइजिंग शीट रहती है which is bound to the glass. All right, are you there? Yes, sir. देखो, ये हमने देखा कि पोलराइजर जो है कैसे 50% लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे ये देखते हैं, दूसरा डायग्राम देखते हैं, यहाँ से अनपोलराइज लाइट आ रही है, वाइब्रेशन ऐसे भी है, ऐसे भी है,
एंगल वाले को रिजॉल्व कर लिया, ये वाले थे ना, इसकी कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ कंपोनेंट इधर आ जाएंगे। तो ये अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और ये आपकी पोलराइजिंग शीट है, पोलराइड बोलते हैं उसको। वहां से जब लाइट क्रॉस होगी, ठीक है, तो 50% हो जाएगी, 1/2। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या है। पोलराइजिंग एंड एनालाइजिंग द लाइट विद द पोलराइड्स, दैट इज मेलस लॉ। इसमें देखो क्या है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अभी ऊपर अनपोलराइज लाइट आई, सिंगल पोलराइड से क्रॉस हो गई, अभी इसमें ये वाइब्रेशंस बचे 50%। यहाँ से 2I0 की लाइट ली, 50% निकली उसमें फर्स्ट पोलराइड से। सेकेंड पोलराइड इज कॉल्ड एनालाइजर। वो चेक करेगा कि इधर वाली लाइट पोलराइज है कि नहीं। हमें डायरेक्ट नहीं दिखेगी, हमें पोलराइजिंग शीट लेनी पड़ेगी। पोलराइजिंग शीट आती है, उसमें से पीसेस काटने पड़ते, बड़ी शीट आती है इतनी, उसमें छोटे छोटे पीसेस काट सकते हैं हमें से, ठीक है। तो ये दूसरा पोलराइड लिया आपने, यहाँ से कितनी इंटेंसिटी क्रॉस होगी, दैट विल बी इक्वल टू पोलराइज लाइट फॉलिंग ऑन दिस I0 पर डे इसके ऊपर, और इनके जो एंगल है, ये वर्टिकल है इसके ट्रांसमिशन एक्सिस, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस एंगल थीटा पे है, तो उसकी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती, बिकॉज एम्पलीट्यूड क्रॉस होते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, एंगल का स्क्वायर होता है। कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेलस लॉ। अगर समझ हमने पूरा घुमा दिया तो 90 डिग्री कर दिया, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो जीरो लाइट आएगी, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो। गॉट इट? तो मेलस लॉ है ये, intensity crossing the analyzer, that is second polarized. Are you there or not? Yes, sir. तो एक तो हम इससे पोलराइज करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टू पोलराइड्स। मेलस लॉ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये डेरिवेशन यू कैन जस्ट स्किप इट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका इंटेंसिटी इसके स्क्वायर से बनती है, इसलिए स्क्वायर आ जाता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री टर्न कर दिया उसने। इसके इसकी जो पोलर ट्रांसमिशन एक्सिस है वर्टिकल है, देखो इसका भी, इसका भी। तो हमें बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ दिख रहा है वो, बट इसको हमने इसके ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है, इसको टर्न कर दिया हॉरिजॉन्टल, देखो पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा। क्रॉस पोलराइजेशन वी कॉल इट। कैलकुलेटर जो पुराने कैलकुलेटर थे उसमें ये जो डिजिट्स बनती थी ऐसे क्रॉस पोलराइजेशन से बनती थी, ब्लैक डिजिट्स बनती थी। इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा एन। 0 डिग्री पे मैक्सिमम लाइट क्रॉस होगी I0, 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगी। स्क्वायर है तो इसलिए निगेटिव में नहीं आएगा, इधर वाला पार्ट कन्वर्ट होकर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है, देखो इसमें क्या बोला उन्होंने, beam of unpolarized light of intensity I0 is passing through the polarized A, है ना। पहले तो वो आधी हो जाएगी यहाँ पर, then passing through another polarized B which is oriented so that principal plane makes an angle 45 degree related to A, theta 45 दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट यहाँ से कितनी क्रॉस होगी, कितनी इसके ऊपर पड़ रही है, पहले वो देखो I0/2 पड़ रही है वो लिखो, और दोनों के बीच के ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल कितना है 45, तो कॉस स्क्वायर 45, तो I0/4 क्रॉस होगी, सी ऑप्शन। समझा? तो ये अभी यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे I0/2 क्यों लिया, क्योंकि इधर I0 दिया ना उन्होंने, तो आधा करने पहले हमने थियरी में देखा वहां पे 2I0 लिया था, यहाँ पे I0 था, इसलिए वो मेलस लॉ में I0 cos स्क्वायर थीटा बना।
इसमें देखो थीटा है, थीटा बाई 2 नहीं है। थीटा बाई 2 किस में था, फाइव बाई 2 किस में था, इंटेंसिटी वाले डेरिवेशन में। यहाँ पे देखो थीटा है ना, कैन यू सी दिस हियर? दिख रहा है पूरा? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विच यू कैन जस्ट डू इट इजीली, फार्मूला याद कर लो। और ये क्वेश्चन था, आगे समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चंस उसमें से कर लेंगे शीट में से। एक दूसरा तरीका भी होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देखो ये आपका ग्लास या वाटर सरफेस है, इस पे अगर हमने इंसिडेंट लाइट डाली है ऐसे, एक सर्टेन एंगल होता है जिसपे हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है ब्रूस्टर ने एक्सप्लेन किया था ये। और पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं उसको। एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पार्शियली रिफ्लेक्ट होती, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती ट्रांसपेरेंट मीडियम से, दिस इज फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज लाइट। और ये वाली जो है, जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें दोनों कंपोनेंट रहेंगे, तो ये अनपोलराइज रहेगी, ये पोलराइज होती। इसमें होता है क्या, ये जो वाइब्रेशन है ना, इसके पैरेलल हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के। इसका कोई भी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे सपोज ऐसे है, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर में हमें दिख रहा है वाइब्रेशन, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा इसका कंपोनेंट। केवल ये अंदर जो प्लेन के अंदर वाली वाइब्रेशन है वो ही रिफ्लेक्ट होती है बस। ये दीज विल बी पैरेलल टू दिस। सपोज कोई ऐसा कंपोनेंट होता है, इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर आ जाते हैं ऐसे छोटे कंपोनेंट, बट ये जो डबल एरो है इसके पैरेलल ही है, तो इसके 90 डिग्री पे इसका कोई भी कंपोनेंट आएगा नहीं, केवल डॉट वाले ये वाइब्रेशन रहेंगे इसके। इसके जो इसमें दोनों क्रॉस हो जाएंगे, और इसके जो है केवल इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये सरफेस के जो पैरेलल है ऐसे, ये सरफेस ऐसे है ना, उसकी पैरेलल वाले वाइब्रेशंस रहेंगे। तो रिफ्लेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है वो, और ये दोनों ये दोनों 90 डिग्री पे होती। ये पॉइंट इसमें ब्रूस्टर ने एक्सप्लेन किया। तो ब्रूस्टर लॉ भी है देखो उसमें, उसका फार्मूला क्या है, ब्रूस्टर लॉ ने क्या लॉ दिया, ये तो बताया। एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होता है, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होती है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर भी होते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे मिलेगा जिसको ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ पर ये बीटा है, आई बी है ब्रूस्टर एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई बी होगा। तो आर कितना होगा, तो ये 90 है ना, तो ये आई बी है, आई बी प्लस 90 प्लस आर, आर डैश कर लो उसको, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ये 180, 90 से माइनस होकर 90 बचेगा, माइनस आई बी। रिफ्लेक्टिंग एंगल विल बी 90 माइनस आई बी। ये हमने प्रूव किया, देखो यहाँ पर नीचे प्रूव किया होगा, नहीं प्रूव नहीं किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल प्लस 90 प्लस आर, नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हमने आई बी ही ले लिया, तो तीनों मिला के 180। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 90 माइनस आई बी। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई की जगह आई बी लिखा, और यहाँ पे आर की जगह 90 माइनस आई बी लिखा, तो ये साइन आई बी अपन कॉस आई बी टेन आई बी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर लॉ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 10 ऑफ ब्रूस्टर एंगल। सपोज इस ये एयर के साथ इसका 60 डिग्री ब्रूस्टर एंगल है, तो यहाँ पे 60 पुट कर देंगे, तो n विल बी √3। तो ये लॉ ऑफ ब्रूस्टर लॉ है, प्रूफ अपने कोर्स में नहीं है अभी, तो जस्ट यू कैन सी दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का हमें ब्रूस्टर एंगल पता लग गया इसका एयर के साथ या वैक्यूम के साथ, तो उसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं।
अगर इसको हमने पानी में डाल दिया तो यहाँ पर Ng/Nw सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा वो। और थर्ड मेथड ये न्यूमेरिकल हम उसमें से कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सनलाइट से जो सन से जो लाइट होती है एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती है वो, है ना? ये अनपोलराइज लाइट है। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल, वो स्कैट करा देते, मतलब उसको स्कैटरिंग करा देते लाइट को 90 डिग्री पे। जो हम देखते हैं 90 डिग्री पे जो लाइट आती है, स्कैटरिंग मींस अब्जॉर्ब करके फिर से उसको स्प्रेड करेंगे। तो जो 90 डिग्री पर जो लाइट जो स्कैटर्ड होती है, इट इज फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें जो वाइब्रेशन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। देखो ये वाले वाइब्रेशन डबल एरो वाले, कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, 90 डिग्री पे पेपर के अंदर जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो डबल एरो के कंपोनेंट कुछ ना कुछ आएंगे इसमें इधर, और ये डॉट वाले तो आते ही है, डॉट वाले तो पूरे आएंगे इसमें। तो इधर 90 डिग्री पर ये जो मॉलिक्यूल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो ऑब्जॉर्व करते लाइट, 90 डिग्री पर उसका कंपोनेंट नहीं आ पाता है। तो 90 डिग्री पे आप पोलराइजिंग शीट लेके देखो तो आपको पता लगेगा, उसको घुमाओगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एटमॉस्फेयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सनलाइट देखो किधर से है, सनलाइट की पोजीशन से 90 डिग्री पे एक पोलराइजिंग शीट लेके घुमाओ तो देखो कि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। ऑलरेडी पोलराइज लाइट है इधर, तो जब पोलराइजिंग शीट के जो ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। डॉट मीन अंदर हो रहे वाइब्रेशन। तो ये दिस लेट अस सी, इसका ये लास्ट ही है, बस यहीं तक ही है। देखो, when the unpolarized sunlight moves in atmosphere, it is scattered in various directions when observed at right angle to the direction of motion। इधर जा रही लाइट, तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइट, है ना? It is found to be completely polarized। अभी इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव। ये जो इंसिडेंट वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के, एक्वायर कंपोनेंट ऑफ मोशन इन बोथ द डायरेक्शन। इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर भी वाइब्रेट करेंगे, अंदर की तरफ भी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, along the arrows and along the dots, दोनों तरफ वाइब्रेट करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटिंग पैरेलल टू द डबल एरोस, ये तरफ जो टू द डबल एरोस है, डू नॉट रेडिएट एनर्जी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विच इज एट 90 डिग्री। इधर जो है ऑब्जर्वर 90 डिग्री, इसकी जो वाइब्रेशन जब ऐसे हो रहे हैं, इसका कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री पे नहीं आएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा, है ना? ये डॉट्स मीन अंदर की तरफ वाइब्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटिंग पैरेलल टू द डबल एरोस डू नॉट रेडिएट एनर्जी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सिंस देयर एक्सीलरेशन हैज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट मतलब ये डॉट वाला, 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो होते हैं, इसलिए इधर एनर्जी, डबल एरो की एनर्जी इधर नहीं आती, 90 डिग्री पे नहीं आएगी, इस एंगल पे होंगे तो आएगी, है ना? तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स वाज intensively investigated by Dr. C.V. Raman and his collaborators in Calcutta in 1920, and Raman was awarded Nobel Prize for the Physics in 1930 for his work. So he got the Nobel Prize in the work of the polarization of light। ठीक है, तो ये तीन तरह से पोलराइज करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हिच वी हैव जस्ट नाउ सीन। उससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से था, रिफ्लेक्शन ब्रूस्टर ने स्टडी की थी, एंड फर्स्ट वन वाज बाय एनालाइजर। So we can see the video of this, just 2-3 मिनट का देख लेते कोई, नेक्स्ट क्लास में विल डू।